Neha. Thank you very much. Now, who is rest? नेहा, तुम जितनी जी देर सर। बोल रही थी कोई चिड़िया की आवाज पूरे समय आ रही थी या मशीन चलने की? च्यों च्यों यस च्यों। सर। क्या है वो? सर मैं ट्री के पास बैठी हूँ। अरे वाह, बिकॉज यू लाइक एनिमल्स. यस सर। हु इज रेस्ट प्लीज? Sir, I am rest. हाँ जी, वैशाली. Hi, sir. Hi, friends. My name is Vaishali Dorlikar. My husband name is Ravindra Dorlikar. From in I from Nagpur. I am a housewife and I am a BA graduate. My hobby is painting and driving. My blood group is O positive. Uh, there are four person in my families. I have one daughters and one Sorry son. for families. There are four person in my family. I have one daughter and one son. My daughter's name is Rutuja. She is 21 years old and my son is 20 years old. And she is doing engineering and my son is doing BBA. My favorite dish paneer tikka and my favorite colors uh, pink and blue. Thank you, sir. Thank you, friends. थैंक यू वेरी मच वैशाली जी. प्रज्ञा, आर यू रेस्ट? प्रज्ञा, आर यू देयर? Yes, sir, I'm here. I'm rest. प्लीज गो अहेड. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, all of you. My name is Pragya Garg. I'm from Chhindwara. Basically, I belong to Jabalpur. I have 10 members in my family. As always, as usual, head of my family is my daddy, my king. He's a retired principal, and Mama is a house queen. She's backbone of our family. I have two elder brothers. They both are married. They both have one child. So, and yeah, I have a younger sister. She's really elf, as I told you before. She's elf, naughty and dangerous. And my qualification is engineering. I have done my engineering from JEC College, Jabalpur. Then I prepared for government exam and I cleared Group D. And I was in railway for 2 years. Then I switched to my exam. Sorry, I switched to my job, and I am in. I am a bank clerk right now. Um, my favorite color, I can tell you. I can't tell you one. Actually, I love all the colors, whichever suits me more. And I like wandering in greeneries. And I'm a foodie girl, so I like always I like something new to eat, to have. Um, my blood group is B positive. Um, so I have completed. If any queries, you can ask me. Thank you. Thank you, Pragya.
वैसे प्रज्ञा ने बोला था आप लोगों से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? चलिए, नहीं पूछना चाहता है। थैंक यू प्रज्ञा। प्रज्ञा, नई चीज जोड़ लेना तुम। हम जो बता रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उसका प्रयोग करते हैं। जैसे माय एल्डर ब्रदर इज हैविंग वन चाइल्ड। ये हम आगे चल के बताएंगे क्यों और कैसे। एंड माय सेकंड वन ब्रदर इज आल्सो हैविंग वन चाइल्ड। मीनिंग वही होगा जो तुम बोलना चाहते। ओके, हु इज रेस्ट प्लीज? इज एनीबॉडी रेस्ट? नो। चलो एक राउंड इसी के Sir, साथ। I am rest. हु इज रेस्ट? Oh, Namrata. Put your hands together for Namrata. Start, Namrata. Sir, I am in train. So can I speak? Okay, you don't want to speak. You are in train. Okay, it will do. Okay, no problem. So you can listen only. चलिए दोस्तों, वैसे हम इंट्रो नहीं सुनते हैं। आज थोड़ा सा सुन लिया था तो उसमें एक चीज जो निकल कर आई उसको सुधरवा लेते हैं। आपने अपना मोबाइल आड़ा कर लिया है क्या? हाँ, तो पुट योर मोबाइल हॉरिजेंटल एंड डबल क्लिक माय फेस। या तो आप डबल क्लिक करें या फिर पिन कर लें। उसमें जो पिन दिखाई देती है उसको टच करेंगे तो आप जिसको भी पिन करेंगे वो बड़ा दिखने लगेगा। क्योंकि आज थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड वर्क जरूरी है इसलिए। और जिसका मोबाइल हॉरिजेंटल नहीं हो पा रहा है, क्षैतिज नहीं हो पा रहा है, वो अपना रोटेशन लॉक चेक कर लेगा। अगर आपका रोटेशन लॉक है तो वो नहीं होगा। प्रज्ञा, इज योर मोबाइल हॉरिजॉन्टल? Yes, sir. My mobile is horizontal. क्या आपका मोबाइल क्षैतिज हो गया है? जी सर, मेरा मोबाइल क्षैतिज हो गया है। पूरा Is राउंड he खेल। mobile horizontal? Namrata, is your mobile horizontal? Yes, Pragya, my mobile is horizontal. नम्रता, मोबाइल क्षैतिज है? हाँ प्रज्ञा, मेरा मोबाइल 36 है। Good morning, Namrata Didi. Yes, I am watching it. Sivan, sorry, Abha ji, is your mobile horizontal? Yes, my mobile is horizontal. आभा जी, क्या आपका मोबाइल 36 है? हाँ, मेरा मोबाइल। प्लीज रिपीट। क्या आपका मोबाइल 36 है? हाँ हाँ हाँ, मेरा मोबाइल 36 है। क्षैतिज। जी, गुड मॉर्निंग आभा जी। गुड। शिवांग, your mobile is horizontal? Yes, it is.
क्या आपका मोबाइल हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज है? हाँ, ये हॉरिजॉन्टल है। हिंदी प्लीज हिंदी में बोलिए। Please repeat English. क्षैतिज, हाँ ये क्षैतिज है। Sorry. Abha ji, repeat English. आर योर मोबाइल हॉरिजॉन्टल? Sorry. इज योर मोबाइल हॉरिजॉन्टल? यस इट इज हॉरिजॉन्टल। क्या आपका मोबाइल क्षैतिज है? हाँ ये क्षैतिज है। नेहा दीदी, इज योर मोबाइल हॉरिजॉन्टल? Yes, my mobile is horizontal. नेहा दीदी, क्या आपका मोबाइल क्षैतिज है? हाँ, मेरा मोबाइल क्षैतिज है। रेशमा जी, हेमा जी, is your mobile horizontal? Yes, my mobile is horizontal. हेमा जी, क्या आपका मोबाइल क्षैतिज है? हाँ मेरा मोबाइल क्षैतिज है। हेलो रोशनी जी। हेलो वैशाली जी। Yes, इज योर yes. मोबाइल horizontal? Yes, my mobile is horizontal. क्या आपका मोबाइल क्षैतिज है? हाँ, मेरा मोबाइल क्षैतिज है। निधि दीदी, is your mobile horizontal? Sorry, Roshni. Is your mobile horizontal? No, it is not horizontal. क्या आपका मोबाइल क्षैतिज है? नहीं, ये क्षैतिज नहीं है। Who is rest? I am rest. Shivang. Vaisal, sorry, I have to ask you for. Yes. Vaisali ji, is your mobile horizontal? Yes, Nidhi, my mobile is horizontal. वैशाली जी, क्या आपका मोबाइल क्षैतिज है? हाँ निधि, मेरा मोबाइल क्षैतिज है। Shivang, is your mobile horizontal? आई एम डन। आई एम डन का अर्थ है उसका हो गया है, तो आपको हाँ। नाम कोई और लेना होगा। Who are rest? हु आर रेस्ट गलत वाक्य हाँ, है। who is rest? Who is rest? Okay, you can ask me if nobody is rest. ठीक है सर। Sir, is your mobile horizontal? Yes, it is horizontal. सर, आपका मोबाइल 36 है, 36 है। Sorry. Thank you, Nidhi, for saying sorry. Thank you, Namrata, for saying sorry. दोस्तों, हमारी समस्या यही है। अभी वैशाली जी हिंदी गलत बोल रही थी, तो चूंकि हमारी हिंदी गलत है, और दोस्तों इससे एक पॉजिटिव चीज सीखते हैं। हम इतने समय से गलत हिंदी बोलते आ रहे हैं, फिर भी शर्मिंदा नहीं होते। तो अगर अंग्रेजी गलत हो जाए तो फिर शर्मिंदा होने की क्या जरूरत? इंग्लिश को भी गलत होने दो, उसको भी उसी कॉन्फिडेंस से बोलो जिस कॉन्फिडेंस से आप हिंदी बोल रहे हो। अब वैशाली जी ने मुझसे प्रश्न किया ही नहीं, वो प्रश्न नहीं है, तो इसलिए मैं रुक गया और फट से निधि ने सॉरी बोला। उधर ट्रेन में नम्रता है, उसने भी सॉरी बोल दी। हालांकि नम्रता ने बोला था कि वो केवल सुनेगी, क्योंकि जैसे ही वो अपना ऑन करती है माइक, तो ट्रेन की जो आवाज है वो सुनाई देने लगती है। और जब आप ट्रेन में होते हैं तो नेटवर्क पूरे समय अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए आप उसका नाम लेते जाएंगे, वो
जवाब दे ही नहीं पाएगी कई बार। तो अभी हम नम्रता को शामिल नहीं करेंगे। और वैशाली जी ने म्यूट नहीं किया हुआ है, तो एक सड़सड़ाहट की आवाज भी सुनाई दे रही है। चलिए कोई बात नहीं, हम मुख्य चीज पर आ जाते हैं दोस्तों। आज हम आपको एक फ्लैक्स दिखाने जा रहे हैं जो इस क्लास की प्रोसेस का अंग है, और उसी में एक चीज भी दिखाएंगे आपको। दोस्तों, क्या मैंने कभी आपको बताया कि इंटरेक्टिव सेंटेंस और इडियम इस क्लास का जरूरी हिस्सा है? अगर बताया हो तो बताएं। अच्छा, कोई जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब नहीं बताया होगा। प्रज्ञा, तुम्हें याद है हमने इंटरेक्टिव या इडियम पे कोई चर्चा की हो? Yes, sir. You have told us ओके। about interactive. No. Yeah, interactive. प्रज्ञा, इज इट विजिबल टू यू? Yes, sir. It is visible to me now. I zoom. दोस्तों, आपको अपनी स्क्रीन को अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा। You will have to adjust your screen accordingly. It will be visible. आप अपनी स्क्रीन को एक उंगली, पहले तो डबल टैप तो है ही, और आप दोबारा भी डबल टैप करेंगे तो इतना जूम हो जाएगी। फिर उसके हिसाब से आप एक उंगली से उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो बेटा प्रज्ञा, अच्छा, जिनको नहीं देख पा रहा है, जो नहीं देख पा रहा है वो परेशान ना हो। प्रज्ञा भी इसको पढ़ेगी तो उसको सुन के बोलिएगा। और चूंकि वो इंग्लिश में लिखा है तो आपके, अगर आपका सीसी ऑन है, चालू है कैप्शंस, तो नीचे स्क्रीन में लिखा हुआ भी आएगा। प्रज्ञा, व्हाट इज दिस रिटन? Today's interactive sentence. करेक्ट। इसका हिंदी बता सकते हो प्रज्ञा अपने? आज के इंटरैक्टिव वाक्य। हाँ, बस एक शब्द बस तुमने गलत किया तो वो हम सही करवा देते हैं। आज का, आज का इंटरेक्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हो, और अगर किसी को जानना है तो हम बता देते हैं, आज का वार्तालाप का वाक्य या आज का बोलचाल का वाक्य। तो प्रज्ञा इंग्लिश एक बार और बोलेगी, फिर हिंदी बोलेगी, फिर शिवांग का नाम लेगी और गाड़ी आगे बढ़ेगी। Today's interactive sentence. आज का इंटरैक्टिव सेंटेंस। शिवांग। Today's interactive sentence. आज का interactive sentence. निधि दीदी। नेहा दीदी। Today's interactive sentence. आज का इंटरेक्टिव सेंटेंस। गुड Good मॉर्निंग morning नेहा दीदी। रोशनी दी। Today's interactive sentence. आज का interactive sentence. निधि दीदी। Today's interactive sentence. आज के बोलचाल का वाक्य। वैशाली जी। सॉरी। अब सॉरी हो गया है तो थोड़ा हम भी बोल देते हैं कुछ। निधि, बहुत जल्दी तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है।
अब सब लोग थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गए होंगे, आपके चेहरे के भाव बता रहे हैं कि अचानक मैंने इस तरह का वाक्य क्यों बोल दिया। राइट प्रज्ञा, केवल मुंडे हिला के बता देना। एक्चुअली मैंने निधि की हाथों की लकीरें देख ली। जब वो अनम्यूट करने के लिए उसने ऐसा हाथ किया तो मुझे उसका भाग्य नजर आया। हम ऐसे भी अनम्यूट कर सकते हैं और ऐसे भी म्यूट कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करेंगे तो हम आपका भाग्य वाचन कर दिया करेंगे। शैलेंद्र पांडे हमारे अग्रज हैं, जी टीवी में आते हैं, और बेजान दारूवाला से भी मैंने थोड़ी सी शिक्षा हासिल की है। एक बार मुझे हस्तक्षेप करना पड़ेगा, हम फिर से राउंड को शुरू करेंगे। टुडेज इंटरैक्टिव सेंटेंस, आज का बोलचाल का वाक्य। प्रज्ञा। Sir, did you call my name? Yes, I called you. Did you listen whatever I said? Sir, I didn't hear. I didn't listen. Okay. Wait a minute. Let me take the help of one stick pen. Today's interactive sentence, आज का वार्तालाप का वाक्य। Today's interactive sentence, आज का वार्तालाप का वाक्य। शिवांग। Today's interactive sentence, आज का वार्तालाप का वाक्य। नेहा दीदी। Today's interactive sentence, आज का वार्तालाप का वाक्य। ये दीदी। Today's interactive sentence, आज का वार्तालाप का वाक्य। वैशाली जी। Today's interactive sentence, आज का interactive sentence। गुड मॉर्निंग वैशाली दीदी। गुड मॉर्निंग वैशाली दीदी। हेलो। गुड मॉर्निंग वैशाली दीदी। हाँ, गुड मॉर्निंग का अर्थ ये है कि अगर आप सो गए हैं तो व्यक्ति आपको जगा रहा। अच्छा। नहीं तो क्लास आगे कैसे बढ़ेगी, ये है इस गुड मॉर्निंग का उद्देश्य। हाँ। आपने अपने तक राउंड ला के रोक दिया, आगे बढ़ाया अच्छा। ही नहीं। Who is rest? I am rest. I am rest. Today's interactive sentence, आज का वार्तालाप का वाक्य। हेमा जी। हाँ रोशनी जी। today's sorry गुड मॉर्निंग। हेमा जी गुड मॉर्निंग। हाँ आप आभा निधि, मैं थोड़ा वेट करके फिर बोलती हूँ। आभा जी आप बोलिए पहले। Today's interactive sentences, आज का वार्तालाप का सॉरी। सॉरी। आज का इंटरेक्टिव वाक्य। Come again in English. Today's interactive sentences, Sorry. today's interactive sentence, आज का वार्तालाप वाक्य। गुड मॉर्निंग आभा जी। Who is rest? हेमा जी।
टुडेज इन सॉरी मेरे को बोल हो ही नहीं रहा है, प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं हो रहा है। हेमा जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यस सर। आप गुरु मंत्र पर फिर से उसको हमने आपको जो गुरु मंत्र दिया था उसको रटना किसी को भी नहीं है, बल्कि उसको आत्मसात करना है। आत्मसात करने का सरल अर्थ होता ओके है जहन में किसी चीज को उतार लेना, और आत्मसात करना लिखने और रटने से एकदम अपोजिट है। हमें 27 साल तक राधा ने लिखना रटना सिखाया, तो हम उसके आदी हो गए हैं। लेकिन इस क्लास में ना आपको लिखना है ना रटना है। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि हम आपको लिखवाएंगे ही नहीं, कुछ हम चीजें लिखवाएंगे समय आने पर, लेकिन लिखना उतना जरूरी नहीं है क्योंकि ये स्पोकन क्लास। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, दिस इज स्पोकन क्लास, अर्थात बोलचाल की क्लास, बोलने वाली क्लास। और बोलने के लिए एक जो सबसे आवश्यक इंद्रिय होती है, जो सेंस बोलने के लिए जो सबसे आवश्यक है, वो है सुनना। इसलिए वो गुरु मंत्र हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, यू मस्ट बी अ गुड लिसनर। अगर आप अच्छे बोलने वाले बनना चाहते हैं तो आपको अच्छा लिखने वाला भी बनना होगा। सॉरी, हम गलत बोल गए, सुनने वाला बनना होगा। और सुनने वाले का साहित्यिक शब्द है श्रोता। वक्ता अर्थात बोलने वाला, श्रोता अर्थात सुनने वाला। तो अगर कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है, वॉइस क्लियर नहीं है, तो उसके लिए आपको अपने बच्चों की किसी की मदद लेनी होगी। हो सकता है आपको नया ईयरफोन या कुछ ना कुछ ऐसा। आप वाईफाई यूज करती हैं अगर, तो साफ सुनाई देना चाहिए। हाँ, अगर आपका मोबाइल पुराना होगा थोड़ा, तो उसका वॉल्यूम कम होगा, तो फिर आप ईयरफोन प्रयोग कर लें। लेकिन ईयरफोन उसी कंपनी का लें जिस कंपनी का मोबाइल है। अब हम दूसरा राउंड शुरू करते हैं प्रज्ञा से। इस बार आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सर। जी प्रज्ञा, टुडेज इडियम, आज का मुहावरा। हम आपको 3 हिंदी शब्द बोल रहे हैं, आपको जो याद रहे आप हिंदी में वो बोल दीजिएगा। मुहावरा, कहावत, लोकोक्ति, इन 3 नामों से ये जाना जाता है, और ये हमने आपको व्हाट्सएप भी किया। तो इट इज प्रज्ञास गो। प्रज्ञा। टुडेज इडियम, आज का मुहावरा। शिवांग। टुडेज इडियम, आज की कहावत। शिवांग, नेहा तुम दी। एकदम से नेहा दीदी के ऊपर पहुंच जाते हो क्योंकि तुम्हारी रियल सिस्टर का नाम भी नेहा है। तो हमारा तुमसे आग्रह है, और वो भी करबद्ध है। करबद्ध इसको कहते हैं, ये इनको संस्कृत में कर कहते हैं, करबद्ध निवेदन, कि आप एक सेकंड में, हाँ, आप आभा जी का नाम रट लें, शिवांग जी। ठीक है, पहले आप आभा उनका जी। नाम पुकारें। वो निधि, और आभा जी आप निधि का नाम पुकारा करें। जी शिवांग जी, आप आगे बढ़ें। आभा जी। हाँ जी। टुडेज इडियम, आज का मुहावरा या कहावत। निधि जी। टुडेज इडियम, आज की लोकोक्ति। वैशाली जी। हाँ, टुडे इज इडियम, आज का मुहावरा या कहावत।
निधि जी, आई एम डन। who is rest? आई एम रेस्ट। नेहा, गुड मॉर्निंग इतना नेहा सन्नाटा जी। क्यों है भाई? नेहा जी, टुडे इडियम, आज का मुहावरा। नेहा जी, your voice is chopping. Can you come again, please? टुडे इडियम, आज का मुहावरा। Your voice is रोशन दी, chopping badly. Please come again. टुडे इडियम, आज की कहावत। Thank you very much. You are clearly audible now. रोशन दी, टुडेज इडियम, आज की कहावत या मुहावरा। गुड हु मॉर्निंग इज रोशनी रेस्ट? जी। शिवांग, Thank you you. should हु इज रेस्ट? time. आई एम रेस्ट। टुडेज इडियम, आज की कहावत। हु इज रेस्ट? हु इज रेस्ट? Vaishali ji, I think nobody is rest. All are done. चलिए अब हम वापस आते हैं और ब्लैक बोर्ड की तरफ चलते हैं, व्हाइट बोर्ड से। प्रज्ञा, is the blackboard completely visible? Yes, sir. Blackboard is completely visible. क्या ब्लैकबोर्ड पूरा दिख रहा है? Yes, sir. Blackboard पूरा दिख रहा है। Ask the same question to Shivang. Shivang, is the blackboard clearly visible? Yeah, sorry, Sorry. come again please. Is the blackboard completely visible? Yes, it is completely visible. क्या ब्लैकबोर्ड पूरा दिख रहा है? हाँ, ये पूरा दिख रहा है। आभा जी, is the blackboard completely visible to you? Yes. सॉरी। और बेटा, अगर तुम एक शब्द भी बढ़ाओगे और नए बच्चों से जवाब देते नहीं बना तो फिर उनके लिए राउंड फंस जाएगा ना। काय को बढ़ा रहे? हम भी तो बढ़ा सकते थे। तुम नया बैच अपना जब नए आए थे तब जरा याद करो। नहीं याद आया? बेटा, हम तुम्हें अपने जौहर दिखाने का टाइम देंगे, तुम उस समय अपने जौहर दिखाना। अबे उतना ही रहने दो जितना हमने बोलो। जब आभा जी, is blackboard is completely visible? Sorry, Shivang. कम अगेन। आभा जी, is the blackboard completely visible? Yes. Is the blackboard is completely visible? आभा जी, क्या blackboard come again please आभा जी? Is the blackboard completely visible? Sorry, Abha ji. मेरे दो इस Is blackboard completely visible? दोस्तों, इस वाक्य में लिपस्टिक की थोड़ी कमी है। अगर आप चौंक गए हैं तो चौंकना स्वाभाविक था।
वाक्य को खूबसूरत बनाने के लिए हम एक चीज लगाते हैं, उसको मैंने लिपस्टिक का नाम देते हैं। और आगे कभी अगर आपसे गलती होगी तो मैं इतनी हिंट बस दूंगा और आप समझ जाएंगे कि आपने क्या नहीं लगाया, भूल गए। निधि बेटा, याद है आप अपन लिपस्टिक किसको बोलते हैं? नेहा या शिवांग, कोई भी बताए। आर्टिकल। आर्टिकल। कौन सा वाला? द। थैंक यू मेरे डियर सर बच्चों। किसी का नेटवर्क कभी कभी इतना गड़बड़ होता है कि जैसे वो ऑन करता है, आप देखो बहुत तेजी से खरखराहट सी आती है। तो इसलिए दोस्तों मजबूरी में आपको ये हैबिट रखनी होगी, आपकी उंगली बार बार म्यूट माइक पर जाए, बार बार पूरा ध्यान रखिएगा आप। और बेटा शिवांग, यहाँ विजिबिलिटी इसलिए जरूरी है इस क्लास में क्योंकि जो नए लोग होते हैं उनको ये ध्यान नहीं रहता है कि उनका माइक बंद है और वो बोलना चालू कर देते हैं। तो इससे क्या है, उनके होंठ जैसे हिलते हैं तो दूसरे को समझ में आ जाता है कि वो बोल तो रहे हैं लेकिन माइक बंद करके बोल रहे हैं, म्यूट मोड पे बोल रहे हैं। तो कोई ना कोई टोक देता है कि नेहा जी यू आर म्यूट, निधि जी यू आर म्यूट, प्रज्ञा जी यू आर म्यूट। तो इससे क्या होता है, उनको याद आ जाता, अरे, तो उनकी फट से उंगली जाती है, कुछ लोगों का अंगूठा भी जाता है, तो उससे वो अनम्यूट हो जाते हैं। ठीक, भारत माता की जय। तो आभा जी, एक बार मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, इज द ब्लैक बोर्ड कंप्लीटली विजिबल? Yes, the blackboard is completely visible. वेरी नाइस। क्या ब्लैक बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है? हाँ सर, ब्लैकबोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है। थैंक यू। आस्क। वैशाली, is the blackboard completely visible? Sorry. Your sequence is wrong, Abhaji. Is the blackboard completely visible? Sorry, your article is wrong. Yes. Yes, Abhaji. The blackboard completely visible. Sorry, Sorry. Vaishali. Sorry. आभा जी, Yes. आपने जो 2 बार लगाया था उसमें से एक इनको देते। Sorry, sir. Yes, the blackboard completely visible. Sorry. बेटा, जब भी तुम भरतनाट्यम करो तो ये कैमरा ऑफ कर लिया करो, उसके बाद किया करो, ठीक है? ऑफ कर लिया करो, उसके बाद सेटिंग वेटिंग करते हो। चलिए हम इसको विराम दे देते हैं। वैशाली जी, आपके यहाँ बर्तन की आवाजें आ रही हैं? थैंक यू। नहीं, आवाजें आने दीजिए, बस आप ये वाला जो है बटन, इसको दबा दिया करें, है ना? वो तो आते रहेंगी, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, अब इसको पढ़ के आप बताइएगा। प्रज्ञा बेटा, इसको पढ़ो। Apostrophe S. अब किसी का नाम लेना, क्रम याद रखो प्रज्ञा। तो अरे यार, शिवांग. प्रज्ञा, हमें जरा नम्रता से बोलना है कि वो पूरे समय ट्रेन में ना रहा करे, सीक्वेंस अच्छा यहाँ बन जाता है, आ जाए वो। तुम एक काम Yes. करो प्रज्ञा, इस बार निधि जी से पूछना। Yes, sir. For conference, we have to move. हाँ, चलो। Shivang. Apostrophe S. Nidhi Didi. Apostrophe S. Abhaji. Apostrophe S.
गुड मॉर्निंग आभा जी। गुड Who's मॉर्निंग आभा rest? जी। I Who's am rest? rest. I am rest. Apostrophe S. नेहा जी। apostrophe S. वैशाली जी। apostrophe s, There, who is rest? Vaishali ji, I think nobody is rest. We start second round. Apostrophe S, that is काके की। प्रज्ञा, प्रज्ञा, जैसा हमने बोला बोलो। Apostrophe S, that is का के की। शिवांग, Apostrophe S, that is का के की। निधि दीदी। apostrophe s, that is ka ke ki। आभा जी। Apostrophe S, that is का के की। नेहा जी। apostrophe S, that is का के की। वैशाली जी। apostrophe s, that is का के की। नेहा जी। Sorry, your sequence is wrong. गुड मॉर्निंग वैशाली जी। गुड मॉर्निंग वैशाली जी। apostrophe s, that is का के की। Who is rest? Who is rest? I am rest. Apostrophe S, that is का के की। Who is rest? I am rest. apostrophe सर मुझे क्लियर ही नहीं हो रहा है बोलने में। कोई बात नहीं, डोंट फील लेट डाउन। देखिए, मैं एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ खूब सारा जूम। अब आप हमारे साथ बोलिएगा हेमा जी। सर आज छोटा आ, बोलिएगा हाँ आज, यस सर। आज छोटा आ, आ छोटा छोटा आ, छोटा पा में आ की मात्रा, पा में आ की मात्रा, आ सर आ पा में आ की मात्रा, में आ की मात्रा, ऊपर चंद्रमा, आ ऊपर चंद्रमा, ऊपर चंद्रमा, ऊपर अ चंद्रमा, पौ। अब बोलिएगा अ पौ, आ पा, हाँ, आधा सा, आ पा आधा स, अपॉस, अपास, टा में राखी रेफ, ता में रा की रेस, राखी रेफ। र की रेफ। देखिए, हमने खूब जूम किया है, आपको साफ दिख रहा होगा, राइट? हाँ सर थोड़ा हमने सा। खूब सारा इतना जूम कर दिया कि बिल्कुल आपको यहीं पे दिख रहा होगा। तो अब बोलिएगा अपॉस्ट्र, अपास्ट्र, फा में बड़ी की मात्रा फी, और में बड़ी की मात्रा सी, अपा। फा, 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 देखिए फा दिख रहा है, फा। हाँ सर दिख रहा। हाँ, हम इसको और जूम करते हैं, ये देखिए, ये अप, फा है। अप,
अफवाह, अफवार, सर नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी अपन ने देख के बोलने की कोशिश की, ठीक है। हाँ अब सर। हम एक काम करते हैं, जो सबसे ताकतवर इंद्री होती है उसका प्रयोग करते हैं। ओके सर। बोलिएगा अपॉस्ट्रफी। अपॉस्ट्रफी। आपको मिलते हैं 7 करोड़। अफवाह, सर फिर मिस हो जाता है माइंड से। अफवाह, अच्छा, पतंग जानती है ना आप? पतंग, पतंग। हाँ पतंग जानते हैं ना सर। तो अपॉ अपॉस्ट्रफी। अपॉस्ट्रफी। पा में जब ऊपर चंद्रमा लगाते हैं तो वो उसका उच्चारण हमारे हिंदी के आ और ओ के बीच का होता है। ना वो आ होता है ना ओ होता है। हेमा जी, वो अफवाह, बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा लड़कियां बोलती हैं आ। अफवाह। फानी फानी, फा तो आखिरी में देखिए। हाँ। अपॉस, पा में अ, दोनों होंठ जुड़ते हैं, पा हम्म में दोनों होंठ जुड़ते हैं। हम्म। अपा, नहीं, पा अगर खाली बोलेंगी तो फिर वो हमें वहां से चंद्रमा हटाना पड़ेगा। अगर अपा, चंद्रमा हट गया तो अपा हो जाएगा, अपा। हम्म, लेकिन चंद्रमा लगा हुआ है तो वो होगा अपौ। अपा, अच्छा, आपने चुनिटी। बचपन में या कभी ऐसा बोला है? बोल के दिखाइए। अ, अ, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। यही वाला बोलना है, अपॉस्ट्रफी। अपॉनिच, अच्छा, फिर से बोलिए, अपॉस, अपा, अपॉस, न्यूटी, अपॉर्चुनिटी। अपॉस केवल 3 बोलिए, देखिए हम ज्यादा नहीं बोल रहे। हम्म। अपॉर्ट्रफी। अपॉस्ट्रफी। आपने अपॉर, वो वाली पिक्चर देखी है जिसमें सलमान खान के कुत्ते का नाम होता है ट्रफी? ट्रफी। नहीं बताइए मुझे नहीं। पिक्चर का नाम, आपको 7 करोड़ मिलेंगे। सलमान खान के डॉग का नाम ट्रफी। नहीं मुझे माइंड में नहीं आ रहा। कौन बताएगा उसको 7 करोड़ रुपए मिलेंगे? हम आपके हैं कौन? हाँ, ओके। हम आपके हैं कौन, सही जवाब। तो सर उसमें, मुझे इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मेरे टंग से क्लियर ही नहीं होते। हाँ और मतलब अंदर से पूरा आता है कि मैं बोल जाऊंगी, लेकिन है ना आते आते कहीं ना कहीं वो मैं रुक जाती हूँ। हाँ, जैसे रीडिंग हो जाता है मेरे से। उसके लिए हमारे पास एक ये दवाई है। आप अपना एड्रेस भेजिएगा, हम्म। हम बाई पोस्ट भेजेंगे इसको। ओके सर। इसको इसको दिन में 20 बार लेना होता है। ओके, क्या क्या है सर उसमें? वो आप खोल के देखिएगा, अच्छा। ठीक है। आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, आप अपना एड्रेस भेजिएगा, हम व्हाट्सएप से भेज देंगे, सॉरी वो फ्लिपकार्ट से भेजेंगे। ओके। तो कोई बात नहीं, अब अभी हम पहले अपॉस्ट्रफी एस का प्रयोग करना सीख लेते हैं, बोलना बाद में सीखेंगे। ओके सर। अब मजेदार बात यह है कि आप लोग जब अपना इंट्रो दे रही थी तो आप बोल रही थी माय हस्बैंड नेम, है ना? चलिए ब्लैक बोर्ड पर वापस आते हैं। तो देखिए, मजेदार बात देखिएगा, आप बोल रहे थे माय
अब आभा जी आप बताइए माय का हिंदी अर्थ क्या हो? मेरा, मेरे, हाँ, अब यहाँ पे मेरा होगा कि मेरे होगा? यहाँ पे मेरे। हाँ, क्योंकि अपन सम्मान दें। अब वैशाली जी आप बताइए हस्बैंड का हिंदी क्या होगा? पति। हाँ, हेमा जी आप बताइए। पति। सरपति। सरपति नहीं होगा। पति पति। पति। और हम एक शब्द और लगा दे तो कैसा लगेगा ये वाला? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा ना। अब ओके माँ सर। यानी मेरे हो गया, हस्बैंड यानी पतिदेव हो गया। और रोशनी तुम बताओ नेम का हिंदी क्या होता नाम। है? थैंक यू। अब शिवांग तुम बताओ कि इसका अर्थ क्या होता है? है। अब देखिए आप लोग अभी तक ये बोल रही थी मेरे पतिदेव नाम है डैश डैश डैश। अब बताइए वैशाली जी आप और हेमा जी आप और आभा जी कि हिंदी में ऐसा कौन सा शब्द छूट रहा था जो यहाँ लगना जरूरी है? का। का। हाँ, और वो का कैसे लगाएंगे अपन बताइए, किससे लगाएंगे? हस्बैंड में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। क्या बात है, आपको मिलते 7.5 करोड़। और अगर हमारे पास एक बिल्कुल एकदम लेटेस्ट ऑफर है आभा जी, हेमा जी, वैशाली जी, रोशनी जी, निधि जी के लिए, मतलब जिनके पति हैं उनके लिए ये ऑफर वैलिड है। अगर आप चाहें तो हम आपके पति को एकदम लेटेस्ट कर सकते हैं, कर दें? हाँ ओके सर। हाँ, ये होगा एकदम लेटेस्ट हबी। और इसमें और क्या चीज जोड़ दे हेमा जी आप बताइए। एस लगेगा सर। लेकिन ये पूरा 100% जवाब नहीं है, वैशाली जी आप बताइए। माय हबीज। हाँ नहीं नहीं नहीं, अब तो आप म्यूट कर लीजिए, अब हम वैशाली जी से सर क्या एस लगेगा? कोई बात नहीं, अब हम हेमा जी से हबीज। नहीं नहीं, हेमा माय जी से तो पूछ लिया, रोशनी जी से पूछ लिया। गिर गए दोनों भाई। अपॉस्ट्रोफी एस। हाँ सही जवाब, बाकी के 8.25 लाख आपको। अब एक एक करके सबको अपने पति का नाम बताना है अभी। सबको नहीं, गलती कर दी, जिसके पास हो वो बस बताएगा। हाँ रोशनी सबसे अभी। पहले। सर एस बस लगाएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। सर जैसे हेमा जी ने बोला है, वो बोला है, जैसे एस बस लगाएंगे तो उसमें बहुत सारे हो जाते हैं। ये बहुत सही बात पकड़े हैं भाभी जी, एकदम सही पकड़े हैं। अगर खाली एस लगाया, सही बोल रही है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही है, तो फिर ढेर सारे हो जाएंगे। देखो शिवांग अपने इतने बड़े हाथ फैला रहा है। तो अब तय आपको करना है, आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें, ठीक है? तो अपन अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे जिसका अर्थ हो जाता है का या के या की। तो कौन शुरू करेगा अपने पति का नाम सबसे पहले बताना? निधि ने हाथ उठाया सबसे पहले। निधि नाम बता के फिर किसी और का नाम लेना। थैंक यू। My hobbies
name is Mr. Manish Patel. वैशाली जी. सॉरी. बेटा एक बार हिंदी कर दो ना तो क्लियर हो जाएगा. मेरे पतिदेव का नाम मिस्टर मनीष पटेल है. वैशाली जी. माय हबीज नेम रविंद्र डोरलीकर. मेरे पतिदेव का नाम. सॉरी. हाँ. Something is missing. माय हबीज नेम रविंद्र डोरलीकर. इज रविंद्र डोरलीकर. माय हबीज नेम इज रविंद्र डोरलीकर. मेरे पतिदेव का नाम रविंद्र डोरलीकर है. सॉरी. हिंदी में क्या गलत हो गया? मेरे. अब काहे को सॉरी बोला रोशनी? वही तो. सर है नहीं लगाया. लगाया ना. लगाया है. हाँ है तो बोला मैंने. बेटा एक काम करो, सॉरी की जगह कम अगेन बोलो वैशाली. कम अगेन. हाँ. मेरे पतिदेव का नाम रविंद्र डोरलीकर है. अभी ठीक है रोशनी? हाँ. Who is rest? Good. I am rest. आभा जी. My hubby name is Mr. Vikas Gupta. सॉरी. My hubby name is Vikas Gupta. Sorry. Come again, please. My hubby name is सॉरी. Vikas Gupta. My hubby's name is Vikas Gupta. मेरे पति देव का नाम विकास गुप्ता है. हेमा जी. My hubby's name is Mr. दिलीप मोटवानी. मेरे पति देव का नाम मिस्टर दिलीप मोटवानी है. Who is rest? I am rest. My hubby's name is सनी पटेल. मेरे पतिदेव का नाम सनी पटेल है. Who is rest? अब बेटा जो लोग रेस्ट है उनके पति हैं नहीं. ठीक है, लेकिन अब वो रेस्ट क्यों रहे? तो वो अपने पिताजी का नाम बता सकती है या माय बॉयफ्रेंड्स नेम इज ऐसा भी बता सकती हैं. और बचा शिवांग तो वो माय गर्लफ्रेंड्स नेम इज ऐसा बता सकता है. और अगर बहुत गंभीरता पूर्वक जवाब देना है तो माय फादर्स नेम इज या माय मदर्स नेम इज. लेकिन थोड़ा सा मजा करना है तो बॉयफ्रेंड का काल्पनिक नाम बता दो. शिवांग योर टर्न. My girlfriend name is Miss. Girlfriend's name is नंदिनी. मेरी गर्लफ्रेंड का नाम नंदिनी है. नेहा दीदी. पीछे मम्मी पापा है कि नहीं है? अरे वाह, बधाई हो. चलो अब नाम किसी और का. चलो नेहा तुम बताओ. My father name is Mr. Munna Patel. माय फादर. सॉरी. सर father का बेटा चलो तुम थोड़ा देर रुको तो तिरछी भी हो गई हो. प्रज्ञा तुम हाजिर हो. My lover's name is Prabhas. वाह.
मेरे जो वो पिक्चर में आया था, बाहुबली। साहो। हाँ साहू में भी आ रहा है। देखो नेहा शर्मा रही थी और प्रज्ञा ने बता दिया, है ना। तो बेटा नेहा, थोड़ा सा काल्पनिक होने की जरूरत है, ठीक है। My boyfriend name is Arsh Patel. देखो एक तो मेरे तुम्हारी boyfriend वॉइस स्वैपिंग होती है, तो तुम चिंता मत करो। अगर ये कोई रिकॉर्डिंग लेके तुम्हारे पापा जी के पास पहुंच जाएगा या मम्मी के पास, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा वॉइस चॉपिंग में वो सब, ठीक है। तो चिंता मत करो। तो दोस्तों विराम लेते हैं। मन में लड्डू फूटा, फूटने दीजिए, फूटते रहने दीजिए। भारत